विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक नेशन की अगर बात करें तो वो है इंडिया, और इसकी पॉपुलेशन मेजरली युवा है। ऐसे में हर एक युवा की एक दायित्व है कि हम अपने देश की प्रगति में अपना योगदान दें। 2019 का इलेक्शन हमारे सामने है और ये हमारा ये कर्तव्य है कि हम एक अच्छा डिसीज़न लें ताकि एक अच्छे लीडर के हाथ हमारा देश का कमान हो। तो बस इसी चीज़ के लिए मैं एक छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ ताकि मैं देख सकूँ कि हमारा देश क्या सोच रहा है। चलिए आगे आज कुछ नया करते हैं। So what does India want before elections? I come from the field of training and development and youth development, and I believe that there are some serious issues in front of us. Before that, I would say we are really proud to say that India is the youngest nation in the world. Plus, by 2025, 1/5 of world's working age population would be from India. And at the same time, it's really disheartening to acknowledge the fact that more than half of the 5 million odd graduates that India produces annually are rarely employable in any sector of the economy. And the major reason for that is skill deficiency. So I would say that India does require a leadership that could hit upon these three targets or say topics as issues. Number one is skill development or say youth development. Second is more job creation, and third is more encouragement to job creators. So I believe if these three issues are addressed properly, India would prosper, and of course India would lead the economy and India would lead the world. Thank you. Hi, my name's Ashley Myers. I've spent the last 30 years on and off of my life in India. I'm officially converted, as it were, via Arya Samaj. So I've got a little background in India and a little understanding of where India is going in the future. In my opinion, hopefully after this election, we will have hopefully some diplomatic and sustainable solution to the Jammu Kashmir problem, because obviously we're having Jawans die on both sides, and it's a traumatic situation at the moment, especially after February the 14th. I'd also like to see a little bit more equality in society in India, especially in terms of the outdated caste system, which may have its purpose in certain areas, but generally the way the Dalit community and the lower castes are treated, this is very unjust and very unequal. So I'd like to see a little bit more equality across the board in India in the future. So yeah, Jammu Kashmir, some sort of resolution, some more equality in society for the different castes and the different sexes would be a very nice thing to see going forward in the future. I really like the way things are moving in terms of a resurgence of Hindutva and Hindu culture, the original culture in my opinion. It's really nice to see that coming back up. But on the flip side of that, a negative that comes along with that is a boom in nationalism, which I find can have its negatives, where you get extremism on both sides sometimes, and nationalism is generally the cause for this. So as long as we can see nationalism decrease to some degree, but the resurgence of Hindu culture, the true roots of Hindutva and Hindu culture coming up, I think that would be a beautiful, brilliant outcome for India. Bharat Maa, Jai Hind. So do not judge him by the color. He may look different, but last 30 years he has been spending in the country, India. So he has a nice background in India. So let's move forward. जहाँ तक हम आने वाले इलेक्शंस की बात करें, तो इस बार देश के देशवासियों को काफ़ी सारी अपेक्षाएं हैं सरकार से, और होनी भी चाहिए. After all, we are the ones who are selecting the government, and we are the ones who are in a way responsible for our own solutions. तो इसलिए मुझे लगता है कि हमारे पास जो solutions आने चाहिए वो कुछ इस तरह के होने चाहिए.
नंबर वन आई वुड से हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें अब चेंजेस होने का समय आ गया है, क्योंकि अब अभी तक हमारा जो सिलेबस था या जो हमारा करिकुलम है या जिस तरीके की पढ़ाई हम लोग अब तक कर रहे हैं उसका प्रैक्टिकल अप्रोच से थोड़ा सा नाता कम है। उसमें हमें कुछ इस तरीके की चेंजेस करने चाहिए जिससे कि हमारे टेक्स्ट बुक में और हमारी इंडस्ट्री में जो गैप है वो गैप ख़त्म हो जाए और दोनों में आपस में एक सामंजस्य हो, जिसकी वजह से हमारे लोग, हमारे स्टूडेंट्स, हमारे बच्चे जो कल का भविष्य बनाएंगे वो एक तरह से रेडी हों कल के फ्यूचर के लिए। बिकॉज फ्यूचर में जो चेंजेस होने हैं उसके लिए उनको पता होना चाहिए, उनको पता होने चाहिए लेटेस्ट अपडेट्स क्या हैं, उनके पास हैंड्स ऑन ट्रेनिंग होनी चाहिए। तो एजुकेशन डेफिनेटली एक एक्सपेक्टेशन है जो हम सभी भारतवासियों की अपनी सरकार से होनी चाहिए और होगी। और एक जो दूसरी अपेक्षा है वो ये है कि जम्मू एंड कश्मीर का जो मुद्दा है उसकी वजह से हमारी कंट्री के बहुत सारे रिसोर्सेस और बहुत सारी एनर्जी यूजलेसली वेस्ट हो रही है एक तरह से। कोई प्रॉब्लम आता है तो हमारा सारा का सारा फोकस JNK की तरफ चला जाता है। कोई फाइनेंशियल बर्डन की बात करते हैं तो भी मेजरली वहाँ पे फाइनेंशियल सपोर्ट बहुत ज़्यादा जाता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि वो गलत है, उन्हें सपोर्ट की ज़रूरत है, मैं समझती हूँ, लेकिन उनको साथ में एक सोल्यूशन की भी ज़रूरत है। अब ये मुद्दा ऐसी जगह पे पहुँच चुका है जब इसमें अगर हमने सोल्यूशन नहीं दिया तो शायद ये और कॉम्प्लेक्स हो सकता है। तो एक ऐसी बीमारी को अपने शरीर में रखने की जगह उसकी सर्जरी करना या उसको अब उसका अब इलाज करने का समय आ गया है और मुझे लगता है कि JNK का प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए। तो ये दो अपेक्षाएं मेरी हमारे देश की सरकार से हैं एंड आई विश दैट दे लिव अप टू आवर एक्सपेक्टेशंस। बाकी हम सब इतना अवेयर हो चुके हैं कि हम अपनी सरकार को सपोर्ट करने के लिए पूरी तरह से रेडी हैं। सो ऑल द बेस्ट, जय हिंद। यह मुद्दा होगी 2019 के इस चुनाव में कि सबसे पहले हमें शैक्षणिक रूप से सभी शैक्षणिक संस्थानों के सभी प्रकार के प्रारूपों को सही दिशा में ले जाए और उसको एक जड़ से लेकर के ऊपर तक की सभी बातों को चुन चुन करके पूरा किया जाए। इसी प्रकार आर्थिक रूप से भी समृद्ध करने के लिए उन्हें युवाओं को समृद्ध के रूप में रोजगार की सबसे बड़ी अहम भूमिका होती है, जिन्हें उसके शैक्षणिक कम पूरा करने के बाद उन्हें रोजगार की तरफ उनको दिया जाए। इस सब का प्रमुखता ये इसी बात पर निर्भर है और हम सरकार से निवेदन करेंगे, हम इसी मुद्दा पर चुनाव के लिए वोट डालने के लिए हम अपने चुनाव देने के लिए जाएंगे, अपने मतदान केंद्र पर मतदान देने के लिए, कि जब तक हमारे पास शैक्षणिक, आर्थिक, भौगोलिक एवं सामाजिक इन तरह के मुद्दाओं को पूरा नहीं किया जाता, हम उसके लिए तैयार नहीं हैं। बहुत बढ़िया। और आप भी अगर कुछ कहना चाहते हैं अगर आप इस वीडियो में के थ्रू, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप देश में क्या देखना चाहते हैं, 2019 के इलेक्शन में क्या मुद्दा है जिस पे आप डिस्कस करना चाहते हैं, या फिर किस पार्टी को या फिर आप किस नेता को चाहते हैं कि हमारे देश का वो प्रतिनिधित्व